Some of the most eventful periods in Gurudev's life were his official tours to various districts for the collection and analysis of soil. They were significant because at these camps he could perform mass healings, serve lakhs of people, and locate and train his disciples from the past. Camps. Gurudev joined the Indian Agricultural Research Institute, PUSA, under the Ministry of Agriculture as a soil surveyor in 1958. He was 20 years old. His job involved soil survey expeditions to remote areas across the northern parts of India. This meant being away from home for close to 6 months in a year. Being an escape artist extraordinaire, the official tours became a Vanprasth ashram by default. The Vanprasth ashram is the third of the 4 ashrams or life stages in Vedic culture. It extends from the 50th to the 75th year of one's life and involves moving away from the hustle and bustle of city life to quieter places where you can focus on spiritual pursuits and try to look at things in a very minimalistic manner. Being Gurudev's main area of work, the camps became sites for him to engage in spiritual entrepreneurship. Many significant milestones in his spiritual journey, including forging spiritual alliances and performing mass healings, happened at these camps. The irony was that he performed mass healings in places where there were hardly any masses. But more on that later. Anand Parashar, a junior colleague, gives us some technical background about the organization where Gurudev worked. तो हमारा डिपार्टमेंट जो है वो सोयल सर्वे से रिलेटेड है. हमारे डिपार्टमेंट का बेसिकली नेम था ऑल इंडिया सोयल एंड लैंड यूज सर्वे, जो अभी चेंज होके सोयल एंड लैंड यूज सर्वे ऑफ इंडिया कर दिया गया है. तो बेसिकली ज़्यादा डिफरेंस नहीं है. तो बेसिकली हमारा वर्क था सोयल सर्वे करना और सर्वे के मैप्स तैयार करना. ऑन द मैप वी हैव टू मार्क इसकी क्या सोयल है. ऑब्जर्वेशन लेते थे, उसमें पिट लेते थे, पिट में से सैंपल कलेक्शन होता था, उसके सैंपल कलेक्शन लेके उसकी एनालिसिस होता था, उसके रिजल्ट्स के बेस पे उसकी फिर कैटेगराइज करते थे हम सोइल्स को. उसकी मार्किंग होती थी फिर मैप के ऊपर, और वो हर विलेज मैप पे, पहले विलेज मैप पे होता था, बाद में हमारे यहाँ एरियल फोटोग्राफ्स भी इंट्रोड्यूस किए गए. तो एरियल फोटोग्राफ्स भी हमने काम किया. तो बेसिकली हमारा वर्क ये था कि जो हमारी सिल्टअप जो हो रहा है एरिया, जो सिल्ट ऊपर से आ रही है, उसको किस तरह से कंजर्व किया जाए. हमारा मोस्टली मिनिमम 200 डेज हमारे टूरिंग होते थे, जो फील्ड में ही काम करते थे. पर्टिकुलर एरिया में जाके मध्य प्रदेश, राजस्थान, हिमाचल, पंजाब, हरियाणा, यूपी और उत्तराखंड जैसे है अभी. तो ये एरिया हमारे नॉर्थ जोन में दिल्ली सेंटर के अंडर आते थे. तो ये तो रहा फील्ड का वर्क. वो जो मैप्स वगैरह जो हम वहाँ से बना के लाते थे, उसको ला के फिर वहाँ पे फाइनल करते थे बैठ के. तो वो पर्टिकुलर जिस आदमी ने सर्वे किया वही कर सकता है, क्योंकि ही हैज़ सीन द एरिया. तो वो इतने परफेक्ट था, उनका विजन भी परफेक्ट था और काम करने का भी उनका इतना शार्प माइंड था, एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा हूँ. One of the first people Gurudev befriended at the workplace was Nagpal ji, who accompanied him to these camps, proxied for him when it came to back-end work, and gave him time to train his disciples and engage in spiritual practices. Over to Nagpal ji. So far as government work is concerned, he used to take it very seriously and do it honestly. With hard top of the hill पे भी जाना है, he used to go there. वो कहते थे जब तक मैं अपनी आँख के नीचे से वो देख नहीं लूँगा तब तो उसको मैं ओके नहीं कर. So far Guruji concerned, he used to go there, each and every spot. Let's interview some other co-workers to get their views on what happened at these camps. The first is Gurudev's disciple, Dr. Shankar Narayan, who was also his senior at the workplace. His field job, you see, he used to meet a lot of people in Himachal Pradesh. His tracking was something really. What do you mean track?
tracking means one has to trial mapping, Without good tracking, without good map cannot be done. I also used to track very well. So that is how he was. But his actually field work was 100%. Imagine if Jesus had to run a furniture making factory and perform his spiritual feats at the same time. It was a similar situation that Gurudev was in. He had to travel to remote areas on official tours, map the soil, make reports, and at the same time mentor his disciples and attend to hordes of patients at some of the public events that were held at these camps. He also had his seniors paying visits to check up on the work they were doing. What a time! It was a huge quantum of work that he had to handle. He did, and everybody had nothing but praise for it. F.C. Sharma ji helps us further understand what the Mahaguru's commercial life was like. कभी कभी मैप प्रिपेयर करने के लिए मैं जाया करता था, वो भी 1 हफ्ते के लिए 2 हफ्ते के लिए, ताकि उनको जहाँ जहाँ सर्वे होना वो पहले मैप उनको चाहिए, जिसके ऊपर वो मार्किंग करेंगे, सॉइल पिट बनाएंगे, सॉइल कहाँ कहाँ लिया सैंपल उनके निशान लगाएंगे सारा। तो वो सारा था। और मेरा ऐसा कोई जॉब नहीं था। गुरुजी को ये होता था, वो उनको 6 महीने टूर पे रहना पड़ता था। तो गर्मियों में तो हिमाचल में टूर होता था और सर्दियों में मध्य प्रदेश में टूर होता था। तो टूर में तो यही है कि वो गाड़ी होती थी उनके पास दफ्तर की, और अपना ड्राइवर होता था, एक क्लास 4 होता था, एक खाना बनाने वाला होता था, और टेंट होते थे। नई जगह मिले तो टेंट लगा दो और उसी में रहो फिर। Living at these camps was no walk in the park. Many times, Gurudev's team was unable to find a place to set up camp, so they pitched tents on open grounds. Though I felt I was in heaven just by being in his divine presence, the living was rustic. Occupancies of heaven would have fallen if we were to superimpose the camps there. My introduction to jungle pani, or outdoor ablution, happened at these camps. It was a unique experience for an urban dumbcoff like me, but Gurudev had no qualms about it. One person who admired him behind his back was his agnostic yet indulgent boss, Pratap Singh, in the words of a non-believer. He was a hard worker. He had to map the area on the topography through the satellite photographs and other. हमने 50-60 किलोमीटर की लीड करते थे, फिर आगे महीने महीने में शिफ्ट कर लेते थे कि जहाँ काम पे जाना है, टीडीएस जॉब है, आपको अंदर जाना, पैदल पहाड़ जैसे अगर हिमाचल में चले गए तो टेरेन तो है नहीं, गाड़ी जीप, इनके पास जीप तो जाएगी नहीं, पैदल जाना 10-5 किलोमीटर पहाड़ी पे चढ़ना, देखना, सॉइल लेके आना। और ये वॉज वेरी गुड, हेल्दी तो था ही, वो भाग के चढ़ता था। Gurudev propagated and practiced being conscientious towards work, dutiful towards family, and of service to others. His spiritual entrepreneurship involved the practice of seva, both in the physical and astral planes. He spent many hours daily engaged in part, and it was during part that he would travel out of his body to help and heal those who had visited various sthans that he had set up across the world. Gurudev utilized whatever free time he had at the camps to engage in astral healing. Hard to believe? Yes, but true nonetheless. Gurudev used the campsites, be it Kathok, Renuka, Nagpur, Auli, Bharatpur, Srinagar in Uttarakhand, Bathri, Lucknow and thereabouts, and many other places to render seva. This led to many spiritual and potentially spiritual people coming into his fold, eventually leading to the opening of many more sthans across India. The sthans were an innovative concept where Gurudev set up centers of help and healing at the homes of his disciples. Since his disciples hailed from various economic backgrounds, this allowed seva to be performed without incurring any additional infrastructural expenditure.
Through the multiplication of the sthans, Gurudev expanded the base of his seva to cities, towns, and remote hamlets across the length and breadth of India, and eventually some other countries. The question that begs an answer is, did the camps lead to the sthans, or did the sthans lead in retrospect to the camps? Many of Gurudev's future disciples like Santosh ji from Nadon, Chandramani Vishisht from Renuka, Shambhuji from Jwalaji, Srivastav ji from Lucknow, Suresh Kohli ji from Sunet, Giri Punje ji from Nagpur, Amichand ji from Kotla, Surinder ji from Kanpur, Sabarwal ji from Pathankot, Jain Saab from Jammu, etc. met Gurudev at these camps and went on to run sthans till the end of their lives. This is how the Mahaguru made a habit of manipulating coincidence. What was unique about him was that he was a guru to a few, a deity to many, and a savior to those who existed as spirits and came to him for release or salvation. Spiritual practitioners of all types also came to him for help and blessings. There are many such incidents narrated in the podcast before and after. Often Gurudev's camp was situated near a burial ground or a forest where spirits dwelled, and these spirits would reach out to him for help. One of the unique insights that I gained from my time at the camps was that being a disciple of Shankar and a manifestation of Shiv, Gurudev felt duty-bound to help them. In fact, he facilitated the rebirth of some, while freeing many others from their entrapments. Gagguji remembers a unique sighting at one of Gurudev's camps near Bharatpur. हम ना भरतपुर गए थे। भरतपुर इन्होंने जब कैंप लगा शमशान में ही लगाया हुआ था। मतलब वहाँ नजदीक तक कोई वो नहीं थी, इनहेबिटेंट्स नहीं थे, मतलब कोई भी रेजिडेंशियल नहीं था बिलो दूर तक। तो वहाँ गए तो हमें भी बुलाया। तो वहाँ ये था कि वहाँ के लोगों को ना वो मतलब सेवा पर्पस के लिए तो बुलाया, तो पब्लिक आई उसको अटेंड किया। मुझे याद है शाम के टाइम ना बुलाया, कहने लगे देख वो जंगल में लाइटें नजर आ रही हैं, हाँ देख इधर की लाइट बंद होती दूसरी चालू हो जाती, दूसरी चालू होती तीसरी। तो कहते वो तब समझाने लगे कि ये ना कोई सिरकटे होते हैं, सैयद बोलते हैं इनको, और ये आपस में कम्युनिकेट कर रहे हैं। ये जो इनकी लाइटिंग चल रही है ना, तो इसको इशारा है इनके आपस में कम्युनिकेट कर रहे हैं। ये उनका कम्युनिकेशन का कोई ढंग होगा, है ना, पर इनके नजदीक नहीं जाना। Pravesh Kapoor, a devotee, narrates a story of bewilderment. When we had gone to this place, it was a शमशान घाट। हमने उनको यही पूछा कि गुरुजी आप यहाँ क्यों आए? यहाँ तो कोई है नहीं, ना बंदा ना बंदे की जात। कहते पुत्र लाइन लगवा रही है। मैं क्या जिस तरह को ठीक लगे। We went on samadhi for half an hour. People start coming there, asking, यहाँ गुरुजी कहाँ है, गुरुजी कहाँ है, गुरुजी कहाँ है, and लाइनें लग गई वहाँ। This was a truth which I have seen with my own eyes. To see one's roommate cure lakhs of people, and that too as part of mass healings, must have been a massive cultural shock for Nagpal ji. He recounts the first public healing that happened at Kurwai in Madhya Pradesh. मैं बिल्कुल अनजान था ना, मुझे मालूम भी नहीं था इस बारे में कैसा भी कभी ऐसा। तो मतलब वो कुरवई से जो स्टार्ट हुआ, गुना में ये हालत थी कि बैलगाड़ियों की लाइन लगी हुई थी और एक बैलगाड़ी में 15-20 आदमी लग के आ रहे हैं और अपना इलाज करा के जा रहे हैं। किसी को कोई घरेलू प्रॉब्लम है तो शारीरिक प्रॉब्लम है तो। So when you used to watch him do this, you were surprised. How does he do it? So did you ask him how do you do this? हाँ, so many times. Then वो हंस के टाल देते थे। तो बताइए ये है क्या, आप ऐसा कैसे कर लेते हैं? I'm sure you will empathize with Nagpal ji. Just put yourself in his shoes and see how blurred the picture gets. You make a friend at work,
He becomes your roommate who is nice but strange, forces you to watch movies more often than not, sits at night wrapped in a sheet doing something weird, makes strange sounds through his nose and mouth, and suddenly one day starts curing incurable diseases. How was poor Nagpalji to digest that? Well, and a deep well at that. For Nagpalji, Gurudev was nothing short of a googly. An arrogant entrant who later became a sincere devotee is Suresh Koliji, who hails from Sunet in Himachal Pradesh. Suresh ji, Santosh ji, and Shambhu ji were all teachers at the school at Kathok, where Gurudev had set up his camp. Meeting the Mahaguru was a turning point in Suresh Kohli's life. Do lend him your ears. How did you first come in touch with him? It was just coincidence. मैं जौनपुर में था, हमीरपुर में, तो मार्च में मैं ट्रांसफर होकर कथोग आ गया था। तो एक वहाँ पर थापा थे तांत्रिक, उसने मुझे बताया कि मास्टर एक बात सुनो, यहाँ एक बाबू आया हुआ है, उसके हाथ में ओम है, त्रिशूल है, और वो बड़े छाती में ओम है, अच्छे हैं, बड़े अच्छे भी लगते हैं मुझे। मैंने कहा थापा बात ऐसे तूने कहीं पी के देखा होगा, ओम कोई ऐसी आसान चीज थोड़ी होती है जो ऐसे मिल जाए। ये नहीं कहता, मैं बड़े होश में देखा है। देन आई वेंट टू टीच माय क्लास। जब मैं क्लास पढ़ाने लगा तो पढ़ा नहीं सका। दोस वर्ड्स वर रिसाउंडिंग इन माय माइंड के जिसके हाथ में ओम है, त्रिशूल है, छाती पे ओम है, कोई आदमी कोई ऑर्डिनरी नहीं हो सकता, कौन होगा ये वो। तो मतलब आई वाज नॉट एबल टू टीच माय क्लास। आई थ्रू द बुक, केम आउट ऑफ क्लास। तो स्कूल के गेट के बिल्कुल सामने गुरुजी ठहरे हुए थे। मैं गया, तो तहमत लगाए हुए थे, बाजू फोल्ड किए हुए, हैंडसम मैन, वेरी हैंडसम। मैं कहते थापा जी ऐसे कह रहे थे, कहते हाँ जी है मेरे हाथ में ओम। कहते हाँ ओम तो है। मैं जस्ट वंडर आर यू वेरी श्योर कि ओम है? कहते हाँ। मैं कहता अच्छा लेट मी सी। देखो तो वाकई देयर वाज ओम इन हिज राइट हैंड। मैंने कहा अच्छा ऐसा है साहब कि मेरा भी बड़ा शौक रहा भक्ति में। उस वक्त मैं चामुंडा करता था। तो कहने लगे भगवान से गला करा देंगे। हाँ जी, भगवान गला करा देंगे। हाँ। मैं कह भगवान गला का यस कहते भाई ना। फिर मैं और स्टन रह गया, ही वाज सो कॉन्फिडेंट। तो दूसरी मैं मेरी प्रॉब्लम है, उस टाइम मैं टॉन्सिल से सफर करता था। किससे? टॉन्सिल थे मेरे, टॉन्सिल रहती थी। तो मैं आई कुडंट ईट दही मिल्क वगैरह कुछ भी नहीं ले सकता था, और खांसी बड़ी रहती थी मुझे जी। तो समबडी वाज टेलिंग यू ऑपरेटिंग। मैंने कहा मुझे पहली प्रॉब्लम तो ये कि आई वांट टू हैव दर्शन ऑफ भगवान की भक्ति में। दूसरी मेरी प्रॉब्लम ये है, कहने लगे पानी के गिलास नाल ठीक कर लाएंगे, इज नो प्रॉब्लम। आई वाज अगेन ऐसी एस्टोनिश्ड के ऐसा आदमी कह रहा है कि पानी के गिलास नाल पानी ठीक कर देंगे, बिल्कुल ठीक कर देंगे। आई वाज अगेन इन ए फिक्स। मैं उस वक्त मैं गल कही कि सी आई डोंट बिलीव पंजाबी पीपल आर वेरी क्लेवर, आर यू आल्सो क्लेवर लाइक हिम? कहते नहीं यार ऐसी बात नहीं है मास्टर जी, आप विश्वास करिए मैं कर दूंगा, मैं आई नो इट। अच्छा मैं कह नो प्रॉब्लम। कहने लगे आप चामुंडा का जाप करते हो ना? तो करते रहो, लेकिन घर में ऐसे करना कि एक पानी का गिलास रख लेना वहाँ जहाँ पूजा करते हो, और आंखें खोल के करा करो, आंखें अपने आप बंद हो जाती है। मैं कहा लाइट कर लेंगे। घर आ गया मैं, रात को उस वक्त मैं कोई 11 बजे बैठता था पूजा करने। तो मेरी अलमीरा थी, वहाँ मैंने स्लीपिंग बल्ब लगाया हुआ। तो डिफरेंट फोटो रखे हुए, हैफेजेड था प्रोग्राम, कुछ सिस्टम तो था नहीं। एक जाप दिए थे मेरे एक मित्र ने कि टमाटो का जाप किया करो। द टाइम आई स्टार्टेड डूइंग दैट जाप विद ओपन आईज। तो जैसे पिक्चर में चलती है ना ट्यूब, हाफ पोर्शन ऑफ गुरुजी वाज देयर इन माय अलमीरा। हाँ, smiling before me. In that wee light of the small light of my bulb. I just winking my eyes, देखूं ये कौन है। पहले दिन मुझे मिला है आदमी, नाम मुझे इससे कोई अभी कोई विश्वास हुआ है न श्रद्धा है कि क्यों आ रहा बोला। लेकिन वो रही पिक्चर है, घंटा भर बैठा मैं और घंटा भर पिक्चर आती रही।
So what I am understanding is that while you were doing the Chamunda jap with your eyes open, Yeah. you would see his photograph, The half portion only. but in front of your eyes open or Eyes open, quite awake. That was there for 1 hour continuously. It was there. I enjoyed my jap also. This thing continued for 7 days. जी 8वें दिन वो नहीं आए जी, वो फोटो नहीं आया सामने, आंखें खुली थी. आई ट्राइड माई लेवल बेस्ट, नहीं आई, थोड़ी रिजेक्शन भी हुई. Then in the morning when I went to him, my first question was, क्यों साहब आज की हो गया? तो his reply was कि ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਇਦਾਂ ਦੇਖੋਗੇ ਨਾ तो समझ लेना रब ਨੂੰ पाले मास्टर जी. wow. And I was shivering all around. My every hair was raised with that excitement. Oh, this is the God I was searching for. I have got him. Gurudev was probably an eco-conscious saint who liked to save paper by printing his image on people's walls. And in this case, Almira's too. Kathok was a significant milestone in Gurudev's spiritual life and that of several of his newly acquired disciples who hailed from the neighboring areas. Raji Sharma calls it a lift-off point in the Mahaguru's spiritual journey. Suresh ji continues the story of Kathok. Lakhs of people came there in Kathok. It was a barren place. उस टाइम स्टील का कड़ा पहनाते थे वो. तो स्टील के कड़े खत्म हो गए डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा के. लौंग इलायची काली मिर्च खत्म होगी. कितने लोगों ने वहाँ देखा उनके चमत्कार उस वक्त के, क्या बात है. दैट वाज हिज फर्स्ट गैदरिंग. हमारी रिपोर्ट हो गई कि स्कूल में कोई पढ़ाई नहीं करवा रहे हैं, सारे मास्टर सेवा में लगे हुए हैं, कोई जादूगर आया हुआ वहाँ लौंग इलायची दे रहा और ठीक कर रहा लोगों को. एंड माई डेप्टी डायरेक्टर केम एजुकेशन का कंप्लेंट देखने के लिए. तो सिमिलर थिंग वाज गोइंग ऑन. कोई क्लास नहीं लगी हुई थी, लोग क्लासरूम में थे, लगे हुए, सेवा हो रही है. तो देन ही टॉक टू मी कि क्यों है मिस्टर कोहली, व्हाट इज गोइंग ऑन. मैं दिस इज द प्लेस. गुरु जी से मिलवाया, उसकी प्रॉब्लम खत्म हो गई. एंड देन ही रिपोर्टेड कि नहीं, स्कूल बिल्कुल ठीक चला हुआ है, कोई ऐसी पढ़ाई पड़ी वो भी उनका ठेला बन. But how was the camp at Kathok? How many people used to come? अरे lakhs of people. It was the biggest camp. The biggest was Renuka Wala. But it was not less than that also. A few words with Santosh ji of Nadan, who also met Gurudev at Kathok. ये मई जून 76 की बात है. मेरी किसी तकलीफ की वजह से मेरे को किसी ने बताया कि वहाँ पर कोई इंजीनियर आए हैं, वो काफी लोगों का जल दे के लौंग इलायची बना के कर रहे हैं. तो वहाँ पर मैं गया. फिर गुरु ने जब मेरे को दर्शन हाथ में करवाए ओम के, त्रिशूल के, तो मैं बड़ा एकदम कायल हो गया उस चीज का. और मुझे यूँ लगा कि ये अगर मेरे को चरण नसीब हो जाए तो मेरा कल्याण हो जाएगा. तो गुरु जी ने 3 दिन के बाद गुरुवार के दिन तो मेरे को ये सामान लेके कड़ा, लौंग इलायची और ये बोतल लेके खाली मंगाया है जल डालने के लिए. जब मैं गया हूँ फिर से, तो फिर गुरु जी ने बोला कि बेटा आप तेरा कल्याण ही कर देते हैं. तो गुरु जी ने फिर उस टाइम पे मेरे शिष्यों को डाला करते थे तांबे का कड़ा. उसी दिन उन्होंने तांबे का कड़ा मंगवाया, मेरे को भेज के वो डाला और उसी दिन उन्होंने इनिशिएट मेरे को कर दिया, जाप दे दिया. ऐसा कथोक में डेली इतनी जनता वहां पर आ रही थी गुरु जी की शरण में. उनमें से एक इंसान मैं आपको बताता हूँ जो मेरे सामने हुआ. वहां पर एक 5-4 किलोमीटर पर एक प्रधान जी थे. उनका भाई घर में बीमार पड़ा था और वो आ गया गुरु जी के पास की जी, क्योंकि उन दिनों यहाँ पर टैक्सियां वगैरह नहीं हुआ करती थी. वो जीप लेने आया कि जीप मुझे मिल जाए तो अपने भाई को लेके मुझे चंडीगढ़ पीजीआई लेके जाना है, तो वहां पर इसका इलाज हो सके. अब गुरु जी कहते हैं कि अगर आपके भाई को यहीं पर ठीक कर दे तो वो कहता है क्यों मजाक करते हो जी. अब गुरु जी ने फिर वैसा ही वो जल का गिलास लिया, प्रधान जी को पिलाया और प्रधान जी का पेट 1-2 बार ऊपर किया. उसकी चूंकि उसके भाई की पेट की आंतें गल चुकी थी, 2 बार ऊपर किया और बोला जा तेरा घर में चला जा, तेरा भाई ठीक है अभी. और जब वो घर में गया तो शाम को देखा, शाम को हम लोग भी वहां पर चले गए. तो वहां पर गए जी तो वो आराम से, वो प्रधान जी बोल रहे हैं कि तब से वो आराम से सोया हुआ है जब मैं आपकी शरण में वहां पर आया था, जब आपने मेरे को जल का गिलास पाया उस टाइम पे. तो इसी तरह वहां पर काफी जनता आती रही. और फिर हम लोगों को भी गुरु ने, मैं था, शंभू जी थे ज्वाला जी से, सुरेश कोहली थे हमारे रिटायर्ड प्रिंसिपल है, वो उन दिनों उसी स्कूल में लगे थे.
शंभू जी भी और सुरेश जी भी। उन्होंने फिर हम तीनों को हमें सेवा दे दी। अब हमें क्या मालूम सेवा कैसे करनी है, बस गुरु ने ऐसा हमें एक जल का गिलास मिला दिया और बोला कि बेटा जहाँ भी किसी का तकलीफ है आपने हाथ लगाते जाना, बाकी मैं देख लूंगा। हम तो हैरान थे कि हम ये हमारे लिए एकदम इतनी नई चीज थी, हम क्या करेंगे कैसे करेंगे। पर कमाल की बात है, अजीब बात है, जहाँ किसी को तकलीफ थी हम लगाते चले गए और वो आदमी हंसता हंसता कि ये हमरा भी ठीक है, अब हमारी तकलीफ नहीं है। The agenda for most who came to the camp was to obtain cures for their suffering. But for Santosh ji, Suresh ji and Shambhu ji, the 3 S's of Kathok, it was seva. Santosh ji, who was a bodybuilder and a PT teacher, fell hook, line and sinker for the mahaguru. He recounts one of the many miracles that he was witness to. कथोक में काफी जनता वहां पर अपने बड़े इलाज के लिए आ रही थी। काफी लोग काफी ज्यादा लोग हुआ करते थे। तो एक मैंने देखा इंसान अपने सामने, एक बुजुर्ग थे, वो 2 लाठियां लेके यूं करके चले हुए हैं, यूं करके उनका यहाँ से पूरा झुका हुआ है, यूं करके चल रहे हैं वो। तो गुरु ने उनको बुलाया कि भाई बाबा अगर आपकी हम कमर सीधी कर दे तो बाबा जी क्या बोलते हैं, अब ये तो शमशान पे जाके सीधी हो गई, मैं बुजुर्ग हो गया, अब ये क्या सीधी मेरी होनी है। तो गुरु ने क्या किया, बाबा जी को अंदर बुला लिया और गुरु जी ने एक जल का गिलास लेके 2 छींटे लगाए, उनको जल पिलाया और ऐसे जैसे ऐसे थे बुजुर्ग वो, एक हाथ गुरु ने यहाँ पर रखा, एक हाथ यहाँ पर रखा इधर, और करते 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 बुजुर्ग को सीधे कर दिए एकदम। अब उनको बोल रहे हैं कि आप लाठी छोड़ दो। बुजुर्ग घबरा रहे हैं कि लाठी छोड़ूंगा तो मैं गिर जाऊंगा मैं। गुरु ने लाठियां छुड़वाई और उनको थोड़ा चलाया और बाद में गुरु ने बोला कि बाबा ऐसे करना है, ये लाठियां जो है ना अब आपने कंधे पर उठा के घर को लेके जानी है। तो जब बाबा जी यूं चल रहे थे तो लाठियां यूं कंधे पे लेके बाबा जा रहे हैं और दुनिया हैरान हो रही है, ये भाई मर के कोई भूत प्रेत तो नहीं बन के आ गया, ये क्या हो गया, ये ऐसा हुआ। उधर मैंने देखा अपनी आंखों से। Shambhuji's eldest son Pappu Pahadia witnessed the miracles at Kathok through baby eyes. He grew into an impressive young man and an ardent devotee. His memories present themselves. गुरुजी जब हिमाचल में इस जगह शक्तिपीठ में आए हैं तो ज्वालामुखी के 3 किलोमीटर पीछे कथोक नामक जगह में उन्होंने अपना कैंप डाल रखा था। तो वहीं मेरे पिताजी स्कूल में अध्यापक थे, एक तरफ स्कूल था, दूसरी तरफ गुरुजी का कैंप। तो वहीं से शुरुआत हुई। गुरुजी के साथ उठना बैठना और बातचीत का क्रम चला। पहले तो पता नहीं था किसी को भी ये गुरुजी, छोटी सी जगह थी। इसी क्रम में उनके साथ मिलना जुलना शुरू हुआ। तो गुरुजी के स्टाफ के जो लोग थे उनको गुरुजी करके पुकारते थे, बुलाते थे। तो इन लोगों को थोड़ा सा अचंभा हुआ कि अप टू डेट आदमी और उसको ये लोग गुरुजी करके बोल रहे हैं। इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए तो इन सब ने 3-4 का ग्रुप था अध्यापकों का, तो वहाँ बैठना शुरू किया और इस चीज का पता लगाना शुरू किया कि ये गुरुजी हैं क्या। धीरे धीरे बात आगे बढ़ती गई तो गुरुजी ने वहाँ चमत्कार दिखलाने शुरू किए। किसी को तकलीफ होती तो गुरुजी कह देते थे कि जाओ उसके पेट के ऊपर, पेट में तकलीफ है तो पेट पे हाथ रख के कर देना, वो ठीक हो जाए। In fact, while Gurudev was performing unbelievable miracles at Kathok, his family in Haryana was completely unaware of this spiritual shift. Let's head to Haryana for a chat with Gurudev's sister. तो वो कथोक में इनका कैंप लगा। तो मेरे साथ जो लड़का पढ़ता था, दिलवार उसका नाम था, तो मैंने उसको पूछा, मैंने कहा कि तुम्हारे घर से कथोक कितनी दूर है ज्वालाजी से? कहता प्रेमभू तो हमारे घर पास ही है। तो कहता वहाँ ना एक ओम बाबा आया हुआ है। मैंने कहा ओम बाबा? अब हमको तो ये पता है कि रिसर्च ऑफिसर है हमारे भाई, तो हमको तो ये थोड़ी पता है कि गुरु है। मैंने कहा मेरे भाई के कैंप लगे हैं, वो रिसर्च ऑफिसर है, तो मैंने कहा वहाँ पर सॉइल कंजर्वेशन के कैंप लगते हैं। तो कहता नहीं वहाँ ओम बाबा है। तो बहुत लाइनें लगी हुई है, कथोक नहीं है। तो मेरे ये पापा जी आ गए, गुरु जी आ गए वहाँ। तो मैंने कहा पापा जी कथोक में ओम बाबा कौन है? कहते पुत्र तेरे को किसने बताया? मैंने कहा मेरे साथ एक लड़का पढ़ता है, उसने बोला वहाँ ओम बाबा आए हुए हैं। तो बाबा तो दर्शन नहीं देते किसी को,
शक्ल भी किसी ने देखी, लाइनें बहुत लगी हुई हैं। तो गुरुजी ने वहां पर बैठे बैठे उन्होंने आगे बताया मुझे, फिर तो कहते वहां पर जो सरपंच था ना, कैंप लगा हुआ था, तो वो पूछने आ गया। तो सरपंच के पेट में दर्द हुई, तो कहते मेरे को आवाज आई कि भी तू इसको ठीक कर, सरपंच को, तो तेरे पास शक्ति है तो ठीक कर। तो गुरुजी ने उसको जल बना दिया। अब वो ठीक हो गया, उसको पता नहीं कैंसर की दर्द भी क्या थी, तो उन्होंने शोर मचा दिया, वहां पर तो लाइनें लग गई। For her, this was nothing short of a googly, and naturally she was clean-bowled. Gurudev was bestowed with very localized titles like Kathok Wale Baba, Om Wale Baba, because people had seen the Om on his hands and understood its significance. Himachal is not called Devo Bhumi or land of the gods for nothing. Many a saint has Himachal presented to the world. Spiritual prowess and miracles are an accepted principle. But every solution brings with it an inherent problem. Many of the visitors who frequented the powerful Jwalaji temple situated near Kathok drifted towards Gurudev's camp. Raji Sharma tells us what happened thereafter. I do recollect a fleeting mention of the Kanau incident. This incident happened after I had left Kathok. Apparently, the pandits of Jwalaji were not very happy because suddenly they saw a lot of surge towards Guruji rather than towards the temple. And to see his spiritual power, they invited him to the mandir and took him down to a basement or a dungeon where there was a pair of khanaos. I'm not aware whose khanaos they were, but it must have been a powerful khanao of maybe a tantric or a siddha purush, which he was asked to wear and walk a few steps. He wore those khanaos and walked 3 steps, and that is how they felt, yes, that this person who's been able to walk into this particular khanao is superior or has got higher spiritual powers than what they had earlier deemed it to be. He has the power to step on those shoes. The khadaos were meant to separate the accomplished spiritualist from the pretender to the throne. The priests would punish anyone who could not pass the test. This is hearsay, but I was told this story as far back as the 1980s. The other camp that created waves was the one at Renuka, a town in Simoor district of Himachal Pradesh. Renuka is the dominion of the immortal Parashuramji, son of Devi Renuka and Saptarishi Jamdagni. Let's shift base from Kathok to Renuka, both in Himachal Pradesh but 320 kilometers apart. In a tete-a-tete, Bittuji relives his memories of the time he spent with Gurudev at this camp. देखिए 1979 में हम रेणुका टूर लगा था, तो गुरुजी ने वहाँ पर लोगों से पूछा कि भाई कोई जगह मिल सकती है, तो लोगों ने बोला कि आप मिस्टर वशिष्ठ हैं, उनकी जगह खाली पड़ी है, आप तो उनकी जगह पे आपको जगह मिल सकती है अगर वो दे रहे तो गुरुजी ने वशिष्ठ से बात की। उसने बोला भाई ठीक है, जगह पड़ी है मेरी, लेकिन वहाँ पर बंजर है और वहाँ कुछ हो गया तो आई एम नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। तो गुरुजी ने जगह देखी, बोले ठीक है। हम वहाँ पर अपना टेंट्स वगैरह का जो गुरुजी का कैंप होता था वो वहाँ शिफ्ट किया। शिफ्ट करने के बाद कुछ दिन वहाँ रहे तो पानी वगैरह की व्यवस्था नहीं थी वहाँ पर। गुरुजी आगे आगे थे और हम पीछे पीछे चल रहा था। मैं और एक लेबर का आदमी था रंजीत, जो हमने हायरिंग पे ले रखा था डेली वेजेस के ऊपर। गुरुजी आगे चल रहे थे। गुरुजी ने बोला कि इसको कसी से अपना साफ करते जाओ, साथ में बरसाती नाला है जहाँ पर वो जगह थी जहाँ कैंप लगा। गुरुजी जब नीचे पहुंचे तो इससे मिरेकल कि वो पानी तब तक पीछे पीछे साथ साथ पानी आ गया। वो पानी फिर बाद में हमने यूज भी किया। वो जो सूखा बंजर जब उनके सारे जो बाग वगैरह था वो सूखा पड़ा था, उसमें चलता रहा, वो बाग हरे हो गए। कुछ दिन के बाद वहाँ पर
जहाँ पर वो कैंप लगा था, तो उसी जगह पे एक छोटा सा मंदिर था, शिवलिंग, उसके अंदर जो आप शिवलिंग की बात कर रहे हैं, वो मंदिर में वो शिवलिंग लगा हुआ था, लेकिन वो बिल्कुल उसके अंदर जाले वगैरह लगे हुए थे, सब मतलब उसकी परवाह नहीं की जा रही थी, उसको छोड़ा हुआ था। तो मैंने एक दिन गुरुजी से ऐसे ही प्रार्थना की उनके चरणों में, कहा गुरुजी ऐसा है कि ये मंदिर है, इसके अंदर जाले वगैरह लगे हुए हैं, गंदगी पड़ी हुई है, अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं इसको साफ कर दूं। तो गुरुजी ने मुझे पैसे दिए, बोले बेटा जाकर बाजार से सफेदी लिया, पेंट लिया और लाके इसको पेंट कर दे, और तूने रोज इसके ऊपर सुबह जल चढ़ाना है और इसको धूप बत्ती करनी है। उसके बाद जब मैं धूप बत्ती करता था, उस समय इतना ध्यान नहीं, क्योंकि मतलब मैंने उस ध्यान पे दिया कि जब मैं धूप बत्ती करता था तो गुरुजी वहाँ पर साथ में, सुबह हमारा 6 बजे का टाइम गुरुजी ने फिक्स किया था कि इसको सुबह 6 साढ़े 6 बजे के करीब तूने रोज धूप बत्ती करनी है। तो गुरुजी खुद पीछे आके खड़े हो जाते थे जब मैं धूप बत्ती करता था। गुरुजी के शरीर छोड़ने के बाद कई लोगों को, कई क्या मतलब बहुत लोगों को वहाँ पर गुरु महाराज के दर्शन हुए उस शिवलिंग के अंदर। ये इसमें विशेष दोष है। आप कुछ कह रहे थे कि इनकी कोई 10 साल से कोई इनको फिगर नजर आता था गुरुदेव के हम शक्ल जैसा, सिर्फ उतने के बारे में बताएं। वशिष्ठ साहब गुरुजी को पहले एज ए सॉइल सर्वे ऑफिसर ही मानते थे। तो एक दिन गुरुजी अपने ऑफिशियल वर्क से दिल्ली आए हुए थे, तो मैं वहाँ कैंप पे बैठा था। तो सुबह सुबह वशिष्ठ साहब अपने घर से आए, तो उन्होंने मंदिर में माथा टेका, जो जिस शिवलिंग की मैं अभी आपको मैंने बताया है, और चाय पीते पीते उन्होंने मुझसे क्वेश्चन किया कि वो गुरुजी को शर्मा जी कहते थे, कि ये शर्मा जी जो हैं स्पेक्स लगाते हैं क्या? मैंने उनको बोला कि मैं शर्मा जी स्पेक्स नहीं लगाते, वो गॉगल्स लगाते हैं कभी कभी। तो वो चले गए। शाम को गुरुजी आए तो मैंने गुरुजी को बोला कि ऐसे ऐसे वशिष्ठ साहब आए थे, ये क्वेश्चन पूछ रहे थे। गुरुजी हंसने लग गए। नेक्स्ट डे वशिष्ठ साहब फिर आए वहां पर, उन्होंने मुझसे पूछा कि भाई शर्मा जी आ गए? मैंने कहा हाँ शर्मा जी आ गए। तो बोले मैंने मिलना है। मैंने गुरु महाराज के जाके चरणों में बोला कि मैं ऐसे ऐसे वशिष्ठ साहब आए हैं। तो उन्होंने बोला उनको बैठाकर चाय वगैरह पिलाइए और मैं तब तक शेव करके आता हूँ। जब वो शेव करके आए, वशिष्ठ साहब ने उनसे यही क्वेश्चन किया कि अपना शर्मा जी आप एक बताइए कि आप स्पेक्स लगाते हैं? गुरुजी ने बोला कि नहीं मैं स्पेक्स नहीं लगाता, ये लड़के कभी जीप में मैं जाता हूँ धूल मिट्टी में, तो ये लड़के गॉगल्स लाते हैं तो मैं गॉगल्स लगाता हूँ। तो उसने फिर क्वेश्चन पूछा, गुरुजी ने फिर उसका जवाब दिया मैं जवान आदमी हूँ, अभी मेरे पास स्पेक्स की कोई जरूरत नहीं है। तो वो थोड़ी देर अपनी स्पिरिचुअलिज्म के ऊपर बातें करते रहे वशिष्ठ साहब। तो गुरुजी ने फिर 10-15 मिनट के बाद उनको बोला कि आओ वशिष्ठ साहब हम भी आपको कुछ दिखाते हैं। गुरुजी ने मुझसे पानी मंगवाया, अपना हाथ गुरुजी ने धोए। मैंने गुरुजी को कई बार लोगों को ओम दिखाते हुए भी देखा है, लेकिन जब वशिष्ठ साहब को ओम दिखाया तो वो इतना ओम चमक रहा था कि उतना ओम मैंने दोबारा कभी चमकता हुआ नहीं दिखा। जैसे ही वशिष्ठ साहब ने ओम देखा, वो गुरुजी के चरणों में वो हो गए। फिर बाद में वशिष्ठ साहब ने अपने मुंह से बताया कि पिछले 10 साल से जब मैं वक्ती पे बैठता था रात को, उन्होंने एक उसको सो कॉल्ड आप धूना कहते हैं पंजाबी में, कि लक्कड़ जलती है जहाँ पर लोग जैसे ये संत लोग जो हैं साधु संत लोग वगैरह बैठ के सेव अपना पाठ करते हैं, तो वहां बैठता था। तो सामने की वॉल के ऊपर गुरुजी की शक्ल का आदमी जिसने स्पेक्स लगाए हुए थे, वो 10 साल से मुझे वहां आके डिस्टर्ब करता था, वो दिखता था मुझे। मतलब वो उन्होंने कहा कि मेरी पाठ पूजा में डिस्टर्बेंस होती थी, तो इसलिए मैं सोचता था कि ये कोई पता नहीं कौन है। तो गुरुजी ने उनको बोला कि हाँ बेटा, जो मैं 79 में आया हूँ यहाँ पर, मुझे 69 में आना था, इसलिए 10 साल से तू मेरा इंतजार कर। Gurudev opened a sthan at Renuka in 1980 with Chandramani Vashisht in charge and Parashuram Ji as its chief patron. Chandramani Vashisht eventually picked a successor, Dinesh Ji, to manage the sthan and handed the reins to him before he passed on. Dinesh Ji gives us some background of the spiritual history of the place. इस स्थान का परशुराम जी से क्या कनेक्शन? हाँ, ये सारी धरती परशुराम जी की जन्मस्थली है, तपस्थली है। वो कण कण में रहते हैं यहाँ पे। आपने सुना भी होगा कि यहाँ गुरुजी जब आए थे तो एक पत्थर उठाओ, उसमें से भी आपको ओम दिखेगा। कोई भी पत्थर अब भी आप उठा सकते हैं, उसमें दिखता है। यहाँ उन्होंने कितने हजार साल से धरती बनी हुई है, कितने बार उन्होंने बार बार जन्म लिए हैं। और भगवान परशुराम जी का जन्मस्थली भी है। माता रेणुका जी उनकी मदर का यहाँ पे निवास है। जो झील है वो उनका मंदिर है, उसमें निवास है। उन्होंने यानी सशरीर उसमें निवास किया है।
परशुराम जी अमर हैं, अजर हैं का मतलब समझ रहे हैं आप लोग क्या होता है? फिजिकल फॉर्म। हाँ, वो फिजिकल फॉर्म में कभी भी कहीं भी आ सकते हैं और उनको कभी बुढ़ापा नहीं आता। जैसे यंग शुरू में थे वैसी बाद में, वैसी कभी भी अब भी दिखेंगे तो वैसे ही एक ही उसमें रहेंगे। कैसे लगते हैं? लगते यंग लगते हैं, जिनके आप दाढ़ी मूछ छोटी छोटी ट्रिमिंग करी दाढ़ी मूछ और जटाजूट और बस इस तरह के। It was at the camps that Gurudev forged many spiritual alliances, be it with the great Parashuramji and his mother, Devi Renuka, with several Devi Devtas in Himachal Pradesh, with Budhe Baba and Ogar, and many others whom we are yet to discover. When Gurudev first arrived at Renuka, he instructed all his disciples to refrain from addressing him as their guru. He wanted his identity to remain a secret till he had established a working relationship with Parashuramji. Strange as it may sound, many spiritual greats test other spiritual greats before they can or do acknowledge. Bittuji recounts an interesting anecdote from Renuka that involves Gurudev's eldest daughter Renu. Do listen on. जब रेणुका कैंप लगा तो रेणु को मिजल्स हो गए थे और मिजल्स बिगड़ गए, ठीक है। तो मतलब एक तरह से डेथ बेड पे आ गई थी वो, पर वो यही कहे कि मुझे डैडी को मिलना है, डैडी को मिलना है, डैडी को मिलना है। और गुरुजी थे रेणुका में, माता जी उनको लेके, रेणु को लेके, वो पाल को लेकर और सुभाष को लेके रेणुका आ गए। गुरुजी उस वक्त उस गए हुए थे, फील्ड में गए हुए थे। वापिस आए तो ये लोग वहां पर कैंप के ऊपर बैठे थे और गुरुजी एकदम मतलब जैसे ब्लास्ट होता है ना, ऐसे हो गए। तो माता जी बोले कि भाई मैं नीलाई, ये आपकी लड़की कह रही थी, कहते मरती मर जाती, तो अभी वापिस जाओ। जैसे ये टाइम है 5 बजे का, तो अब उस वक्त तो अंधेरा हो जाता था 6 बजे और रास्ता भी बड़ा छोटा होता था रेणुका का। तो अब मैंने बड़ी हिम्मत करके मैं कहा गुरुजी, कहते यहाँ नहीं रहेंगे। मैं कहा जी यहाँ नहीं रहेंगे, वो नीचे जो यहाँ पर अब स्थान है बायरी में, वहां पर मैं कहा वहां रुक जाएंगे। कहते कहीं मर्जी लेकर रखो, देखिए यहाँ की रोटी भी नहीं खाएंगे। माता जी ने बस यहाँ तक कहा कि जी मैं आपके यहाँ की पानी भी नहीं पीऊंगा, मैं अपना पानी भी लेके आई हूँ, रोटी भी लेके आई हूँ, अगर आपको चाहिए तो आप भी ले लो। तो उनको रात को रखा वहां पर और सवेरे उनको बोले कि मेरे पाठ से उठने से पहले पहले तुम यहाँ से निकल जाना। तो तब उसके बाद गुरु जी ने बताया कि ये परशुराम जी मेरे को चेक कर रहे हैं। अच्छा, हाँ, चेक करने का मतलब मेरे को आजमा रहे हैं, आजमा रहे हैं कि मैं कितना मोह में फंस जाता हूँ कि नहीं फंसता। हाँ, मेरी लड़की और लड़की को और रेणु को हाथों में लेके आए थे। Having passed the test, Gurudev was accepted as a collaborator by the Immortal One, and an alliance that continues to this day was born. Soon after, Gurudev started seva at Renuka and asked a few disciples to join him. Gurudev told them that his voice had gone far beyond the mountains and he expected a lot of people to show up in this little hamlet. Sure enough, in the days that followed, people came from far and wide. Buses from the states of Haryana, Himachal Pradesh, Punjab and Rajasthan offloaded people near the campsite every few hours. In fact, Haryana and Punjab roadways diverted a few buses to Renuka to meet the unexpected demand. As word of the miracle at Renuka spread, the Himachal government sent a few of its officers to investigate the goings-on. They took a sample of the jal that was being distributed there to a laboratory nearby, only to find it to be of immaculate purity. The camp at Renuka remains the site of the largest gathering of mass healing performed by Gurudev, and possibly any other saint. My own experiences at Renuka are enough to fill a book. I cannot forget Devi Renuka's regal persona and divine beauty.
Due to certain strange circumstances, I had asked her for protection, which came instantly. She appeared in all her glory, dressed in white, in the center of my forehead, and touched me with something like a wand or a feather, and I could feel a sense of bliss almost instantly. Let's turn back the clock to the events surrounding my visit to Renuka. Whenever Chandramani Vashisht poured water over the Shivling at the sthan established by Gurudev, the graphic of Om would show up. On a visit to Renuka with a few others, I too saw it. But what my co-travelers saw and I could not was an image of Gurudev appearing on it. Disappointed but unwilling to believe just because the others did, made me exit the scene in disagreement. A little later, we stopped at the home of Karamchand, another disciple from Renuka, for lunch. We sat in the open on the mud floor and were served lunch on plates made of leaves. I cleaned the ground before I put the plate down. And after lunch, when I picked up the plate, I was shocked to see a perfect graphic of the Om inlaid on the ground below it. Though I thought it wise not to share the experience with my host, I felt it was a sign and ran back to the sthan to take another look at the Shivling. Vashishtji had left the premises by then, so I jumped over the compound wall and asked the Shivling to show me what I had not been able to see earlier. What I saw next was nothing short of a lo and behold moment. An outline of a face appeared instead of the Om and stayed there in spite of my complete disbelief. The Shivling did not need my faith to showcase itself and its power. But this incident was indicative of how spiritually charged the place was. I have recently, after over 2 or 3 decades, taken groups of disciples and devotees to Renuka so that they can pay their respects to the power there. Most of them have seen the Om appear on the Shivling when a dhoop is lit in its perimeter. For most of Gurudev's devotees, Renuka is a must visit. It is believed that Gurudev and some of his disciples had in a past life meditated in and around the hills of Renuka, and it is said that their samadhis may still be there. Think about it. If a heavyweight like Parashuramji found it worth his while to collaborate in the establishment of a sthan for seva and indulge in its sustenance, then maybe it would be wise to pay more heed to the philosophy and practice of selfless service. Just because your lifestyle may not include going to camps for long durations, you can do what I do. Make a camp in your mind. Escape from the operations management of your life to the hillside locations in your head. Tune off the mediocrity of day-to-day life, common attachments, family and social ties, and give yourself the time and space to learn and practice spiritualism. Make the mind your paramatmic retreat. For an hour a day, you can make your bed your camp, your morning or evening walk your camp. Let's camp alone. Let's camp together. Let's camp with Gurudev. सोचने से कहाँ मिलते हैं तमन्नाओं के शहर, सोचने से कहाँ मिलते हैं तमन्नाओं के शहर। चलना भी जरूरी है, चलना भी जरूरी है मंजिल को पाने के लिए, मंजिल को पाने के लिए।